Okay, everyone. Please confirm that you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So yesterday we were discussing pointer to two-dimensional array and pointer to string, right? That those two topics were covered. Pointer, how to use pointer to access elements of two-dimensional array, and how to access characters of a string, right? And regarding programs, we discussed yesterday. Today we will start a new topic, array of pointers. Array of pointers. So why there is a need to have an array of pointer, that we first discuss. So I think you have not used it, but array of pointer is used in handling table of string. Now, what is table of string? There is a small topic at the end of the character array. When you have a list of strings, right? It is called table of string like this. Uh, there are, suppose there are six names, country names, right? And you want to read, or you want to handle this all strings, right? So this can be seen as a table of string. It can be seen as a table of string, right? Where each string is considered as a row, and each character is considered as a column. A, U, S, T, likewise N, E, W, Z. So this can be seen as a table of string, where rows are strings and columns are characters. Characters, right? You can understand like this: Australia, A, U, S, and and again forward it, right? New Zealand, India, like this. So this is called table of string. Means you want to read multiple strings, right? So when this type of input is to be read in the program, how to declare a string, right? So for that, the syntax is like this: to read this table of string, you need a character array, which will be declared like this: char is a data type, country is the name of array, first square bracket 6, and second square bracket 15. So first square bracket is indicating number of rows, and second character square bracket value, or constant value in the square bracket, is indicating number of columns, right? Now here you have to understand why 6 and 15 you have to write, because for that, let me remove all those things. Why 6? Because we want to read 6 strings: 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? And why 15? So out of all this 6 string, which string is the longest one? United United Kingdom. United Kingdom. Kingdom. United Kingdom, United yeah, Kingdom. right. Yeah. So here the logic is, when you decide the number of columns, you should take care, so that the longest string can also be read. Of course, the shortest string is India. For that we are not bothered, but we are bothered about the longest string, and it has at least 14 character and one for null character. So sorry, let me count: 1, 2, 3, 4, 5, 6, space is 7, 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 आई गेस. आपको स्पेस काउंट करना पड़ेगा, बीच में जो वाइट स्पेस है उसे भी काउंट करना पड़ता है. सो एग्जैक्टली 14 कैरेक्टर्स आर देयर इन यूनाइटेड किंगडम, एंड वन फॉर null character. So to read United Kingdom, you need 15 columns. So here we have to write the maximum number of columns, that is 15, right? इस बावजूद इसके कि हमें पता है कि इंडिया में तो सिर्फ 5 ही कैरेक्टर है, और अगर नल को कंसीडर करें तो सिर्फ 6 ही कैरेक्टर है,
लेकिन हमें उसके बारे में कंसीडर नहीं करना है, लेकिन जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है वो रीड होना चाहिए. एंड दैट इज वाई वेन एवर यू डिक्लेयर array to read a string, a table of string, the number of columns should be considered, should consider the longest string. अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक क्या है? कोई लॉजिकली कह सकता है कि इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? अब जस्ट टू थिंक, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड नो द आंसर. सिर्फ एक लार्जेस्ट साइज के लिए हमें सारी छोटी साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. Pardon, I couldn't get you. सिर्फ एक वर्ड है यूनाइटेड किंगडम, वो सबसे लार्जेस्ट है, तो ओके, ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ. जब हम ये डेक्लेरेशन करेंगे, कैरेक्टर कंट्री 615, how many bytes will be allocated in the memory? How many bytes will be allocated in the memory? 21. 21. How come 21? नहीं 6 प्लस नहीं सर 15 ही होंगे. 15 ही. तो तो फिर 90 15 है 90. 90 अगर अगर 90 15 कैरेक्टर 90 होंगे, या अगर 15 कैरेक्टर हो गए तो एक स्ट्रिंग आप मैक्सिमम यूनाइटेड किंगडम जैसा कोई एक स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो. 90 कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, राइट? 90 बाइट्स, सॉरी माय मिस्टेक. 90 बाइट्स विल बी allocated contiguous in a contiguous space. अब इसको काउंट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि ये जो टेबल ऑफ स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग नल. देखो ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? AUS 9. 9 प्लस नल तो 10. नल नल कंसीडर कर लेना. न्यूजीलैंड में कितने हैं? 12. 12. नल किया कंसीडर? यस सर Yes sir. Yes, sir. ओके. इंडिया में 6. 6 रशिया के 7 7 7. 7. यूनाइटेड स्टेट्स के स्पेस और नल दोनों काउंट करना. 14 14. नो नो 14 नहीं होगा, 13 हो सकता है. 13. 13 है या, और यूनाइटेड किंगडम में 15, राइट? अब आप इसका समेशन कीजिए. 12 प्लस 10 22 प्लस 6 28 प्लस 7 35 प्लस 13 48 plus 15. So 63. Only 63 characters are there. We want to store 63 characters. How many bytes are required to store 63 characters? अब ये तो यार 63. हाँ, कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए आपको एक बाइट मिलता है. तो एक्चुअली हमारा रिक्वायरमेंट है 63 बाइट. लेकिन ये जस्ट बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ डिक्लेरेशन विच इज कंपल्सरी, वी आर वेस्टिंग अवर 27 bytes which will be occupied during the running of program, though you are using it or not. So this is a drawback, inefficient usage of memory. To overcome this problem, we can go with pointer, which can be used to handle the table of string. And for that, the array of pointer is used, so that you can use exact memory which is required to handle all the string or list of string, right? अब यही बात मैंने लॉजिक, मैंने वर्बली लिखा हुआ है यहाँ पर. जो मैंने आपको समझाया वो आसान भाषा में समझाया. अब यहाँ पर जो है वो बुकिश लैंग्वेज है. देखो ये डेक्लेरेशन का मतलब क्या निकलता है. इट डज मीन दैट कंट्री is an array containing different country names, each with maximum length of 15 characters. मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हमारा assumption है, we are making program, we are assuming that this program will read 6 country names in which the maximum character can be 15, right? Okay. So the total storage requirement for this table of string is 90 bytes.
ओके, अब हमें पता है, we know that the rarely individual strings will be of equal length. ऐसा जरूरी नहीं है कि all 6 string will contain 15 characters. Rarely, it will be rare that all individual strings are of same length. ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता. It is not possible. All string cannot be of same length. Therefore, instead of making each row of fixed number of characters, we can use pointer to a string of varying length. So instead of declaring a array where character length is fixed, we can use pointer which can point to a string of varying length. Right, that is our idea. हमें ये करना चाहते हैं, हम ऐसा पॉइंटर यूज करना चाहते हैं जो स्ट्रिंग को पॉइंट करे और स्ट्रिंग का लेंथ कोई भी हो, मतलब इफ इट इज वेरिंग नो प्रॉब्लम. राइट, फॉर एग्जांपल I am using this code. Now carefully observe this. It is declaration of array of pointer as well as initialization or assignment of the string to array of pointer. ये जो है इसको आप ध्यान से देखिए एक बार. Just look at it. Right? What I have written, character star country 3. Right? अब समझ में आ रहा है एरे ऑफ पॉइंटर वर्ड क्यों यूज हो रहा है. जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं वन डायमेंशनल, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीजर एक्स, सॉरी एक्स प्रॉपर दिख नहीं रहा है, नो प्रॉब्लम, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. एक मिनट में निकाल देता हूँ. इंटीजर, जब भी हम एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं वन डायमेंशनल, तो हम ऐसा लिखते हैं 3. It is 3, huh? So here our meaning, we want to say that X is an array having 3 elements, right? X is a integer array having 3 elements. तो अब इसे देखो, ये कुछ ऐसा ही है, सिमिलर है, सिमिलर ही है कोड. The only difference is here star, right? तो इसका मीनिंग क्या निकलता है पता है? Country is a array of pointers where array of pointer, जब array of pointer बोलते हैं तो उसमें 3 एलिमेंट है. I repeat, country is a array of pointer having 3 elements. अब हर एक एलिमेंट इसमें एक पॉइंटर है, इसमें हर एक एलिमेंट एक पॉइंटर है, इसमें हर एक एलिमेंट एक पॉइंटर है. country 0 is one pointer, country 1 is another pointer, country 2 is another pointer. I hope you are getting. If you are not getting, let us go ahead. Right? क्या मीनिंग निकलता है इसका? कैरेक्टर स्टार कंट्री 3 लिखने से it declares country to be an array of 3 pointers. Array of 3 pointers. Array of 3 pointers. Okay. It is similar to our declaration for one dimensional array. Right? अब देखो, each pointer pointing to a particular country name as, कंट्री 0 है तो वो ऑस्ट्रेलिया को पॉइंट करेगा, कंट्री 1 होगा वो न्यूजीलैंड को पॉइंट करेगा, और कंट्री 2 इट विल पॉइंट टू इंडिया. दिस इज द लॉजिक. यू कैन यूज एरे ऑफ पॉइंटर्स वेयर ईच पॉइंटर विल पॉइंट टू अ स्ट्रिंग. country 0 is pointing to first string, country 1 is pointing to New Zealand, and country 2 is pointing to India, like this. Now what will happen when you are writing this complete code? ये पूरा जो कोड है, अब इसका क्या मीनिंग निकलता है? First of all, these 3 literals 1, 2, 3, they are literals because they are written in quotation mark. Yes, so they will be converted into string and then it will be stored in the memory. और जहां पर भी वो स्टोर होगा वहां पर पहले स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा उसका एड्रेस कंट्री 0 में जाएगा. न्यूजीलैंड जहां पर स्टोर किया होगा मेमोरी में, वहां फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस कंट्री 1 पॉइंटर को मिलेगा, और इंडिया जहां स्टोर किया होगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस कंट्री 2 पॉइंटर को मिल जाएगा. ये लॉजिक हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, राइट?
because country 0, country 1 and country 2 are pointers, they will hold the address of first character of Australia string, New Zealand string and India string respectively. Okay, अब ये जो क्रिएशन हुआ स्ट्रिंग का, उस स्ट्रिंग का कोई नाम नहीं है. ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया जो तीन स्ट्रिंग क्रिएट की है कंप्यूटर ने, उसका कोई नाम नहीं है. तो इन दिस केस व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस स्ट्रिंग्स? तो नाम क्या हो जाएगा? तो इस केस में हर एक स्ट्रिंग का, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रिंग का नाम हो जाएगा कंट्री 0, न्यूजीलैंड स्ट्रिंग का नाम हो जाएगा कंट्री 1 एंड इंडिया का नाम हो जाएगा कंट्री 2. तो नाम भी यही है, पॉइंटर भी यही है. आई रिपीट, नाम भी यही है, पॉइंटर भी यही है. अब इससे ये फायदा होगा कि ऑस्ट्रेलिया उतना ही बाइट्स में स्टोर किया जाएगा जितनी उसकी जरूरत है, न्यूजीलैंड में भी उतना ही बाइट स्टोर होंगे जितनी की जरूरत है, राइट? So this concept, if used, we can save lot of space. अगर पिछला केस लें, अगर ये जो पिछला स्ट्रिंग है यहाँ पर, चलो अब इसके लिए अगर हमें एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करना हो तो कैसे करेंगे? कोई मुझे लिखवाएगा? कोई मतलब आप लोग लिखवाएंगे? इसके लिए ये टेबल ऑफ स्ट्रिंग के लिए मुझे एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर करना है. कैन समवन हेल्प मी? Character star country and country in the bracket में 6. bracket 6. Very good. Character, my pardon for my handwritings, I am using mouse. Country, okay, country, six, right? अब कंट्री 0 जो होगा वो एक पॉइंटर है, कंट्री 1 विल बी अनदर पॉइंटर, कंट्री 2 विल बी द थर्ड पॉइंटर, कंट्री 4 विल बी द फोर्थ पॉइंटर, सॉरी फिफ्थ पॉइंटर हो जाएगा वो, कंट्री 3 विल बी द फोर्थ पॉइंटर, कंट्री 4 विल बी द फिफ्थ एंड कंट्री 5 विल बी सिक्स्थ, राइट? और अब इस पॉइंटर को आपको हर एक, सपोज कंट्री 0 को आपको स्ट्रिंग असाइन करनी है, ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं? वन वे टू डू दैट, सपोज आई वांट टू गिव first pointer the address of first string, so country 0 equal to, in a control string मैं पूरा नाम नहीं लिख सकता इसलिए छोटी वाली स्ट्रिंग लेता हूँ, इंडिया लिख देता हूँ, ठीक है? because it is using mouse so it is very difficult. तो country 0 equal to इंडिया लिखने से क्या होगा? इंडिया will be stored in the memory and the address of first character will be assigned to the pointer country 0, right? So now using country 0 you can access this string. Second, because this string has no name, so its name will be सर आप ही तो बोल रहे हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, तो उसका नाम क्या है ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? मतलब हमने डिक्लेयर करके उसका कोई नाम नहीं रखा है. सेम एज पॉइंटर. हाँ, कंट्री 0 विल बी द नेम ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है कैरेक्टर S10 और उसमें इंडिया स्टोर नहीं करवाया है. सीधा इंडिया कंपाइलर ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसको स्टोर किया और उसके फर्स्ट बाइट का एड्रेस पॉइंटर को दिया. तो इस केस में इस स्ट्रिंग के लिए उसका नाम ये पॉइंटर ही है. कंट्री 0 इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रिंग. बराबर है? थोड़ा ये मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूं शायद, लेकिन लॉजिक आसान है, सिंपल है, राइट? Okay, now what is our next concern? So suppose this is the table, right? And suppose I want to access individual characters. Say for randomly I want to access A of Russia. Can I access? Yes, you can. Suppose I want to access capital K of United Kingdom. Can I access? Yes, you can. Right? उसके लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है सब? Yes sir. Okay. So हाँ, the beauty of this type of code is now it is only using 28 bytes. अगर आपने वो जो नॉर्मल प्रैक्टिस से इसके लिए एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया होता
तो उसमें कितना मेमोरी जाता पता है? कैरेक्टर नॉर्मल अगर आपने रखा होता, कंट्री के लिए मैं सी लिखता हूँ, 3 स्ट्रिंग है इसलिए 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स मैक्सिमम कितना है? न्यूजीलैंड का ही है ऑफ कोर्स, 1 2 3 स्पेस वाइट 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर इस तरह से आप स्ट्रिंग को हैंडल करते तो 36 बाइट्स ऑक्यूपाई होता, लेकिन अगर ये टेक्निक अगर आप लगाएंगे तो 28 बाइट्स में काम हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, राइट? या ओके। Hello, sir. हाँ Yesterday हाँ in length we are not counting null, हाँ but now we are counting null. इन लेंथ मतलब जो जब जो strlen फंक्शन है उसका काम क्या है कि आपकी स्ट्रिंग का लेंथ कितना है वो उसको कैलकुलेट करना है। तो it is only consider those characters which are stored as a string। ठीक है, अब यहाँ पर नल इसलिए हम कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो बाइट ऑक्यूपाई करके रखता है। बाइट राइट नाउ वी आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ मेनी बाइट्स अ स्ट्रिंग इज ऑक्यूपाइंग। yesterday we were concerned about what is the length of the string। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का आंसर है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन हाउ मेनी बाइट्स आर ऑक्यूपाइड उसमें नल आ जाएगा क्योंकि नल एक बाइट कंसीडर करता है, इसलिए आज हम बाइट कंसीडर कर रहे हैं। Okay, sir. Yes. Yeah, okay, so it does mean that you all are paying attention, that's a good thing। Okay, this is a redundant slide, so I'm jumping on from it, and now let me first tell you how you can print a string। मतलब ये कोड लिखना पड़ेगा अगर आपने टेबल ऑफ स्ट्रिंग रीड करवाया है। ठीक है, सपोज यही कोड ये 3 ये आपने लिख दिया, कैरेक्टर स्टार कंट्री 3 इक्वल टू दिस। अब मुझे ये प्रिंट करवाना है कि ये तीनों स्ट्रिंग पॉइंटर से पॉइंट हो रही है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो मुझे printf स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। लाइक दिस आई कैन यूज for loop, for I equal to 0 I is less than 2 I plus plus printf percentage s बैकस्लैश n, मतलब नेक्स्ट आउटपुट विल गो इन न्यू लाइन, और इस परसेंटेज s के लिए द आर्ग्यूमेंट इज कंट्री आई। तो यहाँ आई जो है वो चेंज होता रहेगा। जब कंट्री आई 0 होगा तो कंट्री 0 मतलब ऑस्ट्रेलिया प्रिंट होगा, जब आई 1 होगा तो न्यूजीलैंड प्रिंट होगा, और जब आई 2 होगा तो इंडिया प्रिंट होगा। तो इस हिसाब से आप ये लॉजिक से आप प्रिंट करवा सकते हैं आउटपुट को। कंट्री आई, दिस इज एरे ऑफ पॉइंटर्स, दिस इज एरे ऑफ पॉइंटर। और जब भी एरे यूज करते हैं हम आई को तो यूज करते ही हैं इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, अब दूसरा है कि हमें कोई कैरेक्टर, कोई इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसमें एक्सेस करना है। जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनाइटेड किंगडम में मुझे के एक्सेस करना है, कैपिटल के। तो वो कैसे कर सकता हूं? तो उसका ये कोड है। थोड़ा सा मैच हो रहा है वो पॉइंटर टू 2 डायमेंशनल एरे के साथ, लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। मतलब हम पॉइंटर टू 2 डायमेंशनल एरे के लिए जो कोड यूज करते हैं वो ऐसा होता है, p प्लस आई होल स्टार प्लस जे होल स्टार, राइट? लेकिन यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, नेम आई प्लस जे होल स्टार ऐसा है। ऐसा क्यों है? देखो, नेम आई is pointer pointing to ith string। okay, name I is pointing to ith string। ठीक है, मतलब इसके पास ith string के फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है नेम आई के पास। ठीक है, नेम आई के पास ith string का फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस है। अब उसी स्ट्रिंग में आपको जेथ कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो पहले उसका एड्रेस अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आई एन डी आई ए, इंडिया, राइट? फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर। हेलो सर, हाँ
ઉપરનું પ્રિન્ટ લખ્યું છે ને આ કન્ટ્રી લખ્યું ને આ સ્ટાર નહીં આવે. સ્ટાર નહીં આવે ને બેટા, કારણ કે અત્યારે આપણે એનો પોઇન્ટર તરીકે નહીં, એના એઝ એ નેમ ઓફ ધેટ સ્ટ્રિંગ યુઝ કરી લીધું. હું એટલે તો ક્યારનો બોલતો હતો જોશથી કે આ સિનારીઓમાં એનું કોઈ નામ નથી, તો એનું નામ શું હશે? પોઇન્ટર. Very Okay. good. Good question. Your question is 100% reasonable. But why star is not there? Because I told you कि इस कंडीशन में देखो, ये मैंने अभी रिमूव नहीं किया है. अगर मैंने लिखा है country 0 is equal to India, India will be converted as a string, but it has no name. Yes. So in that case, country 0 is name of the string. Country 0 is the name of the string. Hence, I don't have to write star. ઓકે थोड़ा डिफिकल्ट है ये, थोड़ा डिफिकल्ट है, प्लीज बेयर इट. राइट. ओके, आई गेस यू ऑल cleared. The question was very good and a good timing. Very good. Okay, so now suppose I have written India. It's a string, right? And name I can be considered as a pointer to this string, right? तो नेम आई के पास क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस. अब मुझे सपोज डी एक्सेस करना है. ओके ओके, डी इज अ थर्ड कैरेक्टर. तो मैं उस कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे पॉइंटर को वहां ले जाना पड़ेगा. पॉइंटर को उस एड्रेस को होल्ड करवाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? प्लस फर्स्ट कैरेक्टर को अगर 0 बोलेंगे तो सेकंड कैरेक्टर को 1 और थर्ड कैरेक्टर को 2. तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा 2. And then to get the D value, what I have to do? Parenthesis and dereferencing, so that I can get D character. So similar thing is there. ये देखिए, name I plus J whole star will give you the jth character in the ith string. Are you getting this? Everyone? Yes, sir. Okay, okay. રિપીટ કરી દેજો ને એકવાર. હા, શ્યોર રિપીટ કરીશું. ચલો ફરી એકવાર. આ ઇન્ડિયા છે ને એક સ્ટ્રિંગ છે, રાઈટ? સપોઝ નેમ I is a pointer which is pointing to this string. બરાબર? ઇન્ડિયા સ્ટ્રિંગ ને નેમ I એ પોઇન્ટર પોઈન્ટ કરી રહ્યો છે. પોઈન્ટ કરી રહ્યો છે મતલબ it is holding the address of first character. એટલે I જ્યાં સ્ટોર્ડ છે ને એ બાઇટ નું એડ્રેસ અત્યારે નેમ I આ પોઇન્ટર પાસે છે. બરાબર? હવે આપણે ડી કેરેક્ટરને એક્સેસ કરવું છે. એ ડી કેરેક્ટર જ્યાં સ્ટોર છે ને ત્યાંથી એને એ વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરાવી છે, રાઈટ? તો કેવી રીતે કરાવી શકાય? ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ મૂવ ધીસ ઇન પોઇન્ટર ટુ ધેટ બાઇટ કે જ્યાં ડી સ્ટોર છે. તો મારે અહીંથી લઈને અહીંયા પોઇન્ટરને લાવવો પડશે આ ડિરેક્શનમાં. તો કેટલા પોઈન્ટ ખસેડવો પડશે મારે? એને 0, 1 અને 2. સેકન્ડ એટલે થર્ડ કેરેક્ટર છે ડી, પણ આપણે પહેલા કેરેક્ટરને 0 ઇન્ડેક્સિંગ રાખીએ છીએ, એટલે એનું ઇન્ડેક્સિંગ થર્ડ કેરેક્ટરનું ઇન્ડેક્સિંગ આવે 2. તો મારે અહીંયા પોઇન્ટર ઇન્ક્રીમેન્ટ કરવું પડશે નેમ I પ્લસ 2. એટલે પોઇન્ટરની વેલ્યુ અહીંયા આવી જશે. આ ડી ના એડ્રેસને પોઈન્ટ કરશે. પછી હવે મારે ડી ને એક્સેસ કરવું છે તો મારે ડી રેફરન્સિંગ કરવાનું. એટલે ડી રેફરન્સિંગ કરવા માટે પેરેન્થેસિસ અને એની બહાર સ્ટાર કરીશ એટલે મને ડી વેલ્યુ મળી જશે. એટલે આ જનરલ કોડ નથી, આ સ્પેસિફિક કોડ થયો આ સ્ટ્રિંગ માટે. જનરલ કોડ આ છે નેમ I પ્લસ J. તમારે સપોઝ jth કેરેક્ટર ith સ્ટ્રિંગમાં એક્સેસ કરવો હોય તો તમારે લખવું પડે નેમ I પ્લસ J whole star. So you can access jth character in ith string. Clear? Yes, sir. Sir, No problem. हाँ અહીંયા string નું નામ India થયું કે country થયું? हाँ sorry. What will be the name of string here? India or country? Just now you told that name of string will be country here. ના આ તો ખાલી છે ને એક જનરલ કોડ સમજાવવા માટે લખ્યો છે. બરાબર છે? નેમ થઈ જશે. નેમ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ધ સ્ટ્રિંગ. ઇન્ડિયા સ્ટ્રિંગ નું નામ હશે નેમ I. Okay. કારણ કે અત્યારે નેમ લખેલું છે ને અહીંયા એટલા માટે.
ઓકે, હવે એક પ્રોગ્રામ જોઈશું એટલે તમારા બધા ડાઉટ ક્લિયર થઈ જશે. લેટ અસ સી one program and it will be clear in your mind. Okay, so this is the program. What is the title? Write a program that read 3 string of different length. એટલે એલે જેટલી તમારે એવી 3 string read કરાવવાની જેની length અલગ અલગ હોય, and print them using array of pointer. It should also print all characters with its address. બરાબર, એટલે દરેકે દરેક કેરેક્ટર n થી લઈને a સુધીના બધા કેરેક્ટર with its address એ પણ પ્રિન્ટ કરાવવાના છે. બરાબર છે, એના માટે આ પ્રોગ્રામ લખેલો છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ડિસ્કસ the discussion of this program. So from here void main સુધી તો બધાને બધું આવડે જ છે. You all are master. Now declaration part. Before CLR SCR we have written character star name 3. So this is a declaration of array of 3 pointer. Name is an array of 3 pointers. I repeat, name is an array of 3 pointers. Name is an array of 3 pointers, and it can hold address of any character variable, and it can hold address of any character variable, right? So now by writing in the braces in quotation mark New Zealand, Australia, India, we have created 3 strings and their addresses are given to name 0, name 1 and name 2. Okay, integer ij, they are just increment variable, row wise and column wise. Now first task, हमने इनिशियलाइज करवा दिया इसलिए हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी प्रोग्राम को रन करूंगा जहां पर रन टाइम में हम डेटा एंट्री करेंगे. ठीक है, इसमें रन टाइम पे कोई डेटा एंट्री नहीं होगी इस कोड में, राइट? अब मेन पार्ट यहां पर है. दिस कोड विल प्रिंट each string and its starting address, base address. This code will print each string with its base address. तो कोड क्या है? For I equal to 0, I is less than 3, I plus plus means loop will run 3 times, and inside the loop a printf statement will print the output 3 times. तो हमने printf में क्या लिखा है? %s \t %u \n. तो %s के लिए क्या आर्ग्यूमेंट है? नेम I. अब किसी को डाउट है क्यों स्टार नहीं लिखा है? Yes, sir. I told you that the string is created. New Zealand string is created because it has no name. The pointer pointing to this string is name of that string. ये जो string है, string का नाम कैसे बनता है वो पता है आपको? कैसे string को नाम दिया जाता है वो पता है? सर मतलब इसमें ऐसा हो जाएगा कि नेम 0 इक्वल्स टू न्यूजीलैंड का हो जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, ओ एक मिनट. जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं, ओके, कैरेक्टर एरे, तो हम लिखते हैं कैरेक्टर एस सपोज 10. ओके, और अब मैं लिख रहा हूं कुछ भी, से राइट नाउ राज, मुझे शॉर्ट स्ट्रिंग चाहिए, राइट? ओके, तो राज भी स्ट्रिंग ही है. तो इस स्ट्रिंग का नाम क्या है? अब आप ये बता दो यार पहले, इस स्ट्रिंग का नाम क्या है? इस स्ट्रिंग, हाँ, एस. वेरी गुड, एस, वेरी गुड. नाउ अब मैं दूसरा सिनेरियो लिखता हूं यहाँ पर. राज, प्लीज assume that it is राज. जिसका नाम राज होगा बोलेगा क्या लिखा है. ठीक है, चलो. अब यहाँ पर ये ऊपर जैसा ही है लेकिन थोड़ा फर्क है. अब यहाँ पर क्या है? P is a pointer of character type. तो यहाँ पर क्या होगा जब ये कोड लिखेंगे आप? Compiler will convert this text राज into string. कंपाइलर उसको स्टोर करेगा मेमोरी में, और जहां ये स्टोर हुआ है वहां फर्स्ट बाइट, मतलब आर जहां स्टोर किया गया है उसका एड्रेस विल बी असाइन टू अ पॉइंटर P. ठीक है, अब यहां पर आप मुझे बोल दो कि ये स्ट्रिंग का नाम क्या है? P. गॉट इट? तो ये आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपको ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे दूंगा कि बिकॉज दिस स्ट्रिंग हैज नो नेम,
the pointer which points to this string is name of this string. राज स्ट्रिंग का कोई नाम नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये पॉइंटर जो है यही अब इसका नाम हो गया है. मतलब वो कहते हैं ना कि जो ऐसा मतलब अगर बर्थ डेट पता ना हो तो 1 अप्रैल लिख सकते हैं या 31 दिसंबर लिख सकते हैं. उसी तरह इस स्ट्रिंग का नाम पता नहीं है, इसलिए वो जो पॉइंटर है जिसके पास उसके फर्स्ट बाइट का एड्रेस है वही अब उसका नाम भी है. समझ गए हो आप? तो यहाँ पर नेम आई क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है अब? यस सर, यस यस और नो बोलो तो मैं कुछ आगे का Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सर, यस सर। Yes, ओके sir. ओके ओके. अब परसेंटेज यू मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? बेस एड्रेस. बेस एड्रेस उस स्ट्रिंग का जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस, फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा. तो उसके लिए भी आर्ग्यूमेंट हमने सेम ही रखा है. समझ में आ गया क्यों? Yes, sir. ना नो नो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है. यस सर, आगे। Okay, okay, thank you. Thank you. So that's how we will print the string as well as its base address. Okay, now it's time to print each character with its address. Okay, तो इसके लिए मैं अब सब कुछ निकाल देता हूँ तो confusion कम हो जाएगा. Yeah. Now ये कोड इसके ऊपर concentrate करना है हमें. Okay, तो here we want to access each character of each string. तो हमें रो भी चाहिए, कॉलम भी चाहिए, क्योंकि कॉलम विल बी कंसीडर्ड एज अ कैरेक्टर पोजीशन. तो पहला हमने आउटर लूप रखा है for i equal to 0, i is less than 3, i plus plus. Inside please carefully observe the for loop. क्या लिखा हुआ है? j is initialized with 0 and then condition रखा है हमने name i plus j whole star is not equal to null j plus plus. मतलब जब भी हम नेम i प्लस जे होल स्टार करेंगे तो हमें कैरेक्टर मिलेगा, जेथ कैरेक्टर ऑफ ith स्ट्रिंग मिलेगा, लेकिन वो नल नहीं होना चाहिए, और अगर वो नल है तो लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए. ये सिमिलर कोड है जो हमने कल डिस्कस किया था व्हाइल स्टार p इज नॉट इक्वल टू नल p प्लस प्लस, इफ यू रिमेंबर. ये सेम ही है, हमें नल नहीं चाहिए, लेकिन जब तक नल नहीं आता जे प्लस प्लस होते रहना चाहिए, जिससे हम हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करवा सके. आई होप ये कंडीशन समझ में आया होगा आपको. स्टार नेम Yes, आई sir. नेम जे प्लस. okay okay okay, now inside we have a printf statement which will print %c means character and %u means its address. okay, तो %c के लिए आर्ग्यूमेंट है नेम i plus j whole star और एड्रेस के लिए ओनली नेम i plus j. स्टार डी रेफरेंसिंग नहीं करना है आपको, सिर्फ नेम i plus j लिखेंगे तो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा उस कैरेक्टर का, और नेम i plus j होल स्टार करेंगे तो वो कैरेक्टर प्रिंट होगा. ओके Sir, हाँ sir, ये हाँ यार बोलो. लास्ट वाले प्रिंट में सर स्टार नहीं लगाएंगे तो सर कैरेक्टर प्रिंट होगा कि नहीं होगा? स्टार अगर नहीं लगाएंगे तो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर का मामला है, ये स्ट्रिंग का मामला नहीं है. Okay. नेम आई लिखोगे स्ट्रिंग प्रिंट होगा, नेम आई प्लस जे लिखोगे कैरेक्टर प्रिंट नहीं होगा. Okay, उसका sir. एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा. okay okay, so I will run this program for you. For that allow me to start a turbo c. Is screen visible? Yes, sir. Yes. Yeah. Okay. Now there is a small change in this code. Here I have taken four string. इसलिए जो मैंने कैरेक्टर एरे ऑफ पॉइंटर डिक्लेयर किया है उसमें लिखा है स्टार नेम 4, क्योंकि यहाँ पर चार है. डू मैंने ऐसे ही रखा है, अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, निकाल देते हैं. चलो यहाँ पर 4 की जगह पर 3 कर देते हैं, जितने भी लूप है वहां पर 3 कर देते हैं.
ओके सो कोड यू हैव टू ऑब्जर्व द वन थिंग, ये printf है, इसमें परसेंटेज एस के लिए भी नेम आई है और परसेंटेज यू मतलब एड्रेस के लिए भी नेम आई है। उसी तरह जो नेक्स्ट printf है जहां हम ईच कैरेक्टर को प्रिंट करवाने वाले हैं, वहां परसेंटेज सी के लिए स्टार नेम आई प्लस जे है और परसेंटेज यू के लिए नेम आई प्लस जे। तो यहाँ पर मुझे कोई डेटा एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आउटपुट दिखेगा। ओके करता हूँ F9। सो आउटपुट स्क्रीन पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पहला जो स्ट्रिंग है वो न्यूजीलैंड है और उसका बेस एड्रेस क्या है, मतलब फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 176। ऑस्ट्रेलिया इज अ सेकंड स्ट्रिंग, उसका बेस एड्रेस क्या है 188 और इंडिया इज अ थर्ड स्ट्रिंग एंड इट्स बेस एड्रेस इज 198। अब यहाँ से आपके मैं बहुत सारे फंडे क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहला फंडा कि जब भी हम एरे डिक्लेयर करते हैं वी गेट द मेमोरी इन अ कंटीजियस स्पेस। ओके वी गेट अ मेमोरी इन अ कंटीजियस स्पेस साइड बाय साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो एन का एड्रेस, इट इज आउटपुट स्क्रीन तो मैं आपको एरो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आप देखो एन एम परसेंट 176, ई एम परसेंट 177, डब्ल्यू एंड 178। उसके बाद कैरेक्टर नहीं दिख रहा है, वो क्या है वाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस। ये व्हाइट स्पेस है लेकिन उसने भी एक बाइट स्टोर करके रखा है 179 नंबर का बाइट। देन Z at 180, then small e at a 181, then a at a 182 और तो लास्ट D जो है न्यूजीलैंड का D वो 186 पे है। D का स्टोरेज लोकेशन है 186। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका एड्रेस 188 है, तो 187 कहाँ गया? स्पेस हाँ नो रॉन्ग, नल कैरेक्टर। null character, Null null character. character, so null character occupies 1 byte। बट हमने जो कंडीशन रखा है, हमने कंडीशन क्या रखा है, नेम आई प्लस जे होल स्टार इज नॉट इक्वल टू नल जे प्लस प्लस, मतलब जब तक नल नहीं आता तब तक जे प्लस प्लस होता रहेगा, जैसे ही नल आएगा लूप ब्रेक हो जाएगा, इसलिए वो एड्रेस प्रिंट नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, अब देख सकते हैं कि सारे सारे बाइट्स का एड्रेस साइड बाय साइड है, 180 के बाद 189, 188 के बाद 189, 190, 191। The last character of India, that is A, is stored at 202। उसके बाद नल होगा, उसका एड्रेस है 203, लेकिन वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो आप काउंट करके बता सकते हैं कि कितने बाइट स्टोरेज में कंज्यूम हुए हैं? तो 176 टू 203 कितने बाइट्स होंगे? 26 26 सर 28 26. नहीं, 28 नहीं, नल काउंट किए 28 होते हैं। अगर अगर हमने वो जो नॉर्मल वे यूज किया होता विदाउट यूजिंग पॉइंटर तो 36 बाइट्स पड़े रहते हैं, बाकी के सारे बाइट्स पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने ही बाइट्स यूज हो रहे हैं जितने चाहिए, इवन दो ऑल द स्ट्रिंग्स आर ऑफ वेरिंग लेंथ। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग एरे ऑफ पॉइंटर। अगर आपको आपको एक क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सपोज आई डोंट वांट टू इनिशियलाइज दिस स्ट्रिंग बट आई वांट टू डू द डेटा एंट्री एट अ रन टाइम, so what should I do? Yes, you can do it, you can use getS। मैं इसको निकाल देता हूँ, देखो ये इनिशियलाइजेशन मैंने किया था ना, मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, here only the declaration star name3 means we have declared array name as an array of 3 pointers। now let us read first। तो उसके लिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल कर सकते हैं कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट, उसके बाद शिफ्ट इंसर्ट, तो कॉपी हो जाएगा। अब ये जो पहला लूप है हम इसमें scanf फंक्शन यूज करेंगे या फिर getS भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं getS यूज कर लेता हूँ। ठीक है, getS के साथ आर्ग्यूमेंट में क्या लिखना पड़ता है? स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ता है। getS इज अ इनबिल्ट फंक्शन, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? नेम आई। ठीक है, okay, so now everything else is as same as, right? So let us
compile this, let us run it. So it is asking, means कोई मैसेज नहीं है लेकिन वो डेटा एंट्री करवाने के लिए पूछ रहा है. तो पहला था न्यूजीलैंड, न्यू स्पेस जी लैंड, एंटर ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इंडिया. इस बार कोई अलग एड्रेस पे मेमोरी लोकेट हुआ है, एड्रेस चेंज हो गया है. लेकिन न्यूजीलैंड कंटीजियस स्पेस में है, ऑस्ट्रेलिया भी कंटीजियस स्पेस में है और इंडिया भी कंटीजियस स्पेस में है. हाँ, उसका लोकेशन अलग अलग है, तीनों स्ट्रिंग का लोकेशन अलग अलग हो गया, लेकिन है कंटीजियस स्पेस में. And most important statement from my side, we are not interested about the address, we are interested in value stored at address, at that address. Number कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, whether it is 36,000, whether it is 12,000 or it is 170. We are not interested in that number, we are interested in value stored at that location. तो उसका चिंता मत करो कि यार 1200 आ रहा है या 12,000 आ रहा है, सर का तो 170 आ रहा था. No problem, it is not important, right? Okay, I think we should, if you have any question we can, otherwise the lecture is over, right? Those students who have a question they can ask. सर वो रखिए सर आउटपुट स्क्रीन. हाँ, अच्छा ठीक है करता हूँ, otherwise the lecture is over, right? उसको रन करना पड़ेगा, मुझे रन करूं? यस सर. आपका डाउट क्या है, आउटपुट स्क्रीन पे है कि प्रोग्राम के अंदर? आउटपुट स्क्रीन के अंदर है. उसके अंदर डाउट ये है सर कि न्यूजीलैंड के अंदर तो कंटीजियस स्पेस था, लेकिन उसके बाद अचानक मतलब वो जंप होके अलग उसमें 12,000. हाँ, but see, it is not in our hand actually. It will be decided by system कि इस string के लिए कहाँ space देना है, इस string के लिए कहाँ space देना है. It is not in our control. But memory was contagious. हाँ. सर लास्ट प्रोग्राम के अंदर वो कंटेजियस था, मतलब इवन इंडिया और न्यूजीलैंड था तो वो भी सेम में ही था, मतलब 120 या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमने रन करवाया तो उन्होंने रन टाइम पे जैसे जैसे डेटा एंट्री की उस हिसाब से उन्होंने मेमोरी दी. वहां पर इनिशियलाइज करवाया था तो सबको एक साथ में ही दे दी मेमोरी, ऐसा हो सकता है. यस सर, हमने इनिशियलाइज किया था ना, इसलिए होगा. हाँ, वो इनिशियलाइज किया था इसलिए. बट स्टिल मैं उस आर्ग्यूमेंट को मतलब मैं उस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करता कि इनिशियलाइज करोगे तो सब कुछ लाइन में आएगा और रन टाइम करोगे तो सब अलग अलग आएगा. आई विल से दैट सिस्टम जानता है कि उसको कहाँ मेमोरी देना है. आपको ये ऑब्जर्व करना है कि हर एक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग का कंटीजियस बाइट में होना चाहिए, कंटीजियस स्पेस में होना चाहिए. Okay. If you want to check it, let us run again once, so that इस बार मैं short string डालूंगा तो फटाफट रन हो जाएगा. फर्स्ट स्ट्रिंग है राज जय नील. यहाँ पर भी अलग अलग ही आया है, लेकिन उसके बाद वो JAY एक ही लाइन में है. J का 12,803 है, A का 804 है और Y का 805 है. वो कंटीजियस है वापस. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो वैसे भी हमें बोदर नहीं, we should not bother about that. Okay then. Okay sir. Thank you sir. Yeah. Thank you sir. Yeah, welcome. Thank you sir. You're welcome. Thank you, sir. Thank you sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, welcome. Yeah, you are present, Jay. All present.